Hello and welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to start with multipolarity and regionalism. The world order was dominated by United States in the post-Cold War era. The American military and economic might was unchallenged during this time. This made it the only superpower. However, economic rise and military capabilities are not the only criteria to become and remain a superpower. It is the amalgamation of both hard power and soft power. This shapes a country to become a world power. So we have seen in our previous video what is unipolarity. Unipolarity is one country dominating the world. We have seen bipolarity where two countries are dominating the whole world. But due to regionalism, due to rise in regionalism, we can see many countries have started rising, and because of this we have seen multipolarity. Means there are now many countries are trying to influence other countries. We will see a few examples of major countries like India, China, Japan, Russia, and also United States of America. These are the major countries who are having influence on in the world. Okay, so this is called as multipolarity, as these nations have rose to power. However, अभी देखो किसी भी एक नेशन को इफ़ दैट नेशन वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर, तो उसके लिए सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिलिट्री से फुल वेल इक्विप्ड मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड बहुत अच्छी इकोनॉमी होना यही नहीं होता है, बट ऑल्सो इट नीड्स टू हैव इन्फ्लुएंस ओवर अदर कंट्रीज ऑन वर्ल्ड, अदर कंट्रीज एंड ऑल्सो ऑन द वर्ल्ड. सो हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था दी सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर. दो मेथड्स होते हैं इन्फ्लुएंस के. सो वाइल हार्ड पावर रिलाइज ऑन अ coercion, military force and economic sanctions. Soft power includes persuasion, cultural influence, values and traditions. So hard power is किसी को डरा के धमका के वो कंट्री दूसरे कंट्री से जो उसके मतलब उसको जो चाहिए वो करके लेगी. एंड सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस हम लोग देख सकते हैं कि लाइक फ्रॉम मैनी कंट्रीज students from one country go to another country for studying for their higher education. फिर नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं जो फूड चेन्स है जैसे कि मैकडोनल्ड्स हुआ, पिज़्ज़ा हट हुआ. देन नेक्स्ट वी कैन सी कल्चरल एस्पेक्ट वेयर like we celebrate friendship day, we celebrate father's day, mother's day, children's day. So this is an example of cultural influence of the western nations. So but now in recent times, such the dominant position of United States have been directly or indirectly challenged. For instance, the economic, why it is challenged, so we will see its reason. For instance, the economic and regional integration in Europe through the creation of European Union. So we have seen कि यूरोप पूरा मतलब ऐसे डिवाइडेड था. सो फॉर इंटीग्रेटिंग मतलब पूरा यूरोप को यूनाइट करने के लिए देयर वाज, तो उधर हम लोग देख सकते हैं एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोमिनेंटली वर्क करती है यूरोप के रीजन में, वो है यूरोपियन यूनियन. The rise of Asia through the presence of China, Japan, followed by India in the global world order. The military resurgence of Russia and the growing importance of new regional organization have come to define a shift from unipolar world to multipolar world order. See, जापान जिस पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बॉम्ब डाले थे, न्यूक्लियर बॉम्ब डाले थे, वो ही नेशन आज टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो रहा है. इवन चाइना इज़ हैविंग गुड इकोनॉमी. चाइना की इकोनॉमी जो है वो अच्छी हो, चाइना ने बहुत सारे मार्केट कैप्चर किए थे, मतलब बहुत सारे मार्केट में चाइना अपने प्रोडक्ट्स बेचता है. देन इंडिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड रशिया जो है, रशिया एंड ग्रोइंग. because Russia is also important because Russia is an oil exporter nation. So यहाँ के जितने भी nations हैं सब ने अपने अपनी रीजनल उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस
दे नीड टू फोकस ऑन देयर रीजन, अपने रीजन को वो ठीक से डेवलप करे. एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनलिज्म. रीजनलिज्म प्लेज अ very crucial role, and because of these regional organization we have seen shift from unipolar world to multipolar world order. So China has posed a formidable challenge to unipolar world led by United States. See, अभी की भी सिचुएशन वी कैन सी कि चाइना एक जो एक चैलेंज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ सामने. सो चाइना's rise to global prominence and can be attributed to its rapid China's rise to global prominence can be attributed to its rapid economic progress since the introduction of market reforms in the mid 1970s under Deng Xiaoping leadership, the most dramatic phase of which began only in the 1990s. सो चाइना की इकोनॉमी इनके लीडरशिप के अंदर बहुत ही अच्छे से चाइना की इकोनॉमी. सो हियर आई विल शो यू फ्यू पिक्चर्स. सो हैव अ लुक एट दिस पिक्चर और इसको पॉज करके आप थोड़ा सोचो, मतलब ये पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है. सो ये जो पिक्चर्स है ये मोस्टली जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या फिर जो भी वो एक कार्टून के लिए कॉलम रहता है, तो वो कार्टून के कॉलम में ऐसे पिक्चर्स आते रहते हैं जो पॉलिटिकल कंडीशन या जो भी पॉलिटिकल जो चल रही है चीज़ें वो डिपिक्ट करते हैं. सो ये तब का मैंने ये आपको पिक्चर्स वगैरह एनसीईआरटी में मिल जाएंगे. सो मैंने उसी से लिया है ये. यू कैन सी दिस पिक्चर्स. तो इधर आपको चाइना की ड्यूअलिटी दिखाई दे सकती है. मतलब चाइना एक बार यहाँ पे चाइना बोलता है हम लोग कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, एंड आप इसकी इकोनॉमी भी देख सकते हैं. सो वी कैन सी द ड्यूअलिटी ऑफ चाइना हियर. सो यू कैन सी दिस इमेज. तो ये इमेज में एक हम लोग देख सकते हैं ड्रैगन है. सो इधर हम लोग दो चीज़ें देख सकते हैं. एक तो है ये चाइना की वॉल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एंड दिस ड्रैगन. सो जब भी ऐसे कुछ इमेजेस आते हैं रिलेटेड ड्रैगन या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये कंडीशन ये दिस इज एसोसिएटेड ड्रैगन एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज एसोसिएटेड विद चाइना. सो उस कार्टून में कुछ चाइना के रिलेटेड है. सो दीज टू आर मोस्ट कॉमनली यूज टू डिपिक्ट चाइना. तो ये पिक्चर में एक हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल राइज की चाइना की इकोनॉमी अचानक मतलब कैसी राइज हो गई, लाइक ग्लोबल राइज. सो आई थिंक जो शेक्सपियर की पोयम है ऑल वर्ल्ड्स अ स्टेज, वो आपने पढ़ी होगी एक बार तो. सो उसमें कैसे जो लाइन्स है ऑल वर्ल्ड्स द स्टेज एंड ऑल men and women are the merely players, they have their exits and entrances. तो ये जो हम लोग इधर इतना रिलेटेड नहीं है, बट हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा सुपर पावर वर्ल्ड स्टेज है, एंड इस पे अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका परफॉर्म कर रहा है. यहाँ पे एक है कुछ एक वुडन स्टिक जो भी है वो इसको मतलब पोक करके पूछ रही है दैट योर टाइम इज़ ओवर, नाउ लेट अदर कंटेस्टेंट परफॉर्म टाइप. और यहाँ पे विंग में चाइना खड़ा है और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आने के लिए. सो यहाँ पे क्या है, हाउ लॉन्ग यू थिंक दैट यूएसए विल स्टे ऑन द सुपर पावर स्टेज, इफ़ यू वर टू ड्रॉ दिस हु वुड यू शो एज वेटिंग इन द विंग्स. सो आप वो कमेंट में बता दो आप विंग में किसको मतलब है ऐसा आपको लगता है. सो चाइना हैज़ इंक्रीज इट्स स्पेयर ऑन इन्फ्लुएंस थ्रू इट एम्बिशियस इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स सच एज वन बेल्ट वन रोड एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड एम्स टू क्रिएट अ स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन रीजन. Furthermore, Chinese opening to Africa shows that their dream goes beyond neighborhood countries. Military China is ambitiously building up its naval and air force in order to back up the claims in South China Sea. So, जो चाइना है, चाइना इज़ मोर एम्बिशियस, एंड वो उसने मोस्टली जो पूरे वर्ल्ड की अभी कोरोना वायरस से पहले हम लोग देखे कि
इंडियन मार्केट चाइना ने कैप्चर किया था, बिकॉज इट्स प्रोडक्ट, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत चीप रेट में मिलते हैं, एंड इवन व्हेन यू सेल इट एट चीप रेट देन उसका लाइक बहुत ही मतलब नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसने बहुत ही मार्केट कैप्चर किया था। दो उनके प्रोडक्ट्स भले ही क्वालिटी में अच्छे ना हो बट लोग खरीदते हैं लाइक, तो बिकॉज ऑफ दिस उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, एंड उनके सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इनको अफ्रीका में भी मतलब, और एंड इनका बहुत इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया पे, एंड दे आर मोर लाइक एम्बिशियस एंड ड्रीमिंग टू ऑल्सो ओपन देयर मार्केट इन अफ्रीका। सो ना कि सिर्फ उनके नेबरिंग जो भी चाइना के कंट्रीज़ है उधर तक ही उनका मतलब एम्बिशन सीमित नहीं है, ड्रीम सीमित नहीं है। सो दे आर प्लानिंग टू लॉन्च देयर मार्केट इन अफ्रीका। सो ये मिलिट्री चाइना इज़ एम्बिशियस, चाइना इज़ ऑल्सो एंड ऑल्सो रशिया दे आर बिल्डिंग इट्स नेवी, बट चाइना जो है उनके जो क्लेम्स है साउथ चाइना सी पे उसके लिए बहुत एम्बिशियसली उनकी नेवी भी बिल्ड हो रही है। सो व्हाट इज़ वन बेल्ट वन रोड एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पॉलिसी ऑफ चाइना। So if you want, you can study about this. You don't have to go in much, you don't go in much deep, you don't need to go so deep, but like you can search about it. It will give you information, and it will also help you to understand what is one belt one road and China India issues, and जो भी रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। सो रशिया हैज़ मेड अ सब्सटैंशियल प्रोग्रेस इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। रशिया हैज़ इमर्ज्ड एज एनर्जी सुपर पावर। सो जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ है, जो रशिया है और गल्फ़ कंट्रीज़ है, इधर ऑयल बहुत ही ज़्यादा मिलता है। सो ये जो है ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, और इधर जब ऑयल की कीमत बढ़ती है सो पूरे वर्ल्ड में मतलब ऑयल की कीमत बढ़ना इज़ अ बिग थिंग। मतलब अगर $1 से भी बढ़ती है सो हम लोग जैसे कि हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, हमारे पास ऑयल नहीं होता तो हम लोग को हज़ारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। इसलिए इनमें जो है ये ऑयल एक्सपोर्ट पे ज़्यादा बेस है। So this economic stability has renewed the sense of national pride, leading to military assertiveness in recent times. Russia continues to influence the central and eastern Europe. So जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो रशिया है वो सेंट्रल और ईस्ट यूरोप पे उसका पहले से ही इन्फ्लुएंस था। आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिज्म थोड़ा घट गया था इसका इन्फ्लुएंस, बट फिर भी अभी ये ईस्ट यूरोप पे इन्फ्लुएंस है। एंड इट इज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ शेंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो SCO का SCO के बारे में हम लोगों को आगे है यही चैप्टर में। सो टुडे द इंडो पैसिफिक रीजन इज gaining importance. Economic growth in Asia led by China and other countries like India and Japan. Conflicts in South China Sea. The importance of ASEAN and American interest in the Pacific region has contributed to the importance of this region. India is likely to play an important role in this region in the future. So ये जो है ये वर्ल्ड मैप है, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक है इधर उसमें है वो वर्ल्ड मैप। सो ये जो रीजन है ना ये है इंडो पैसिफिक रीजन। अमेरिका है वो ये रीजन में इंटरेस्टेड है, मतलब उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, चाइना में, और जो भी इधर के कंट्रीज़ है इसमें इन लोगों की इन्वेस्टमेंट है। सो ये रीजन में चाइना इज़ इम्पॉर्टेंट, इंडिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इंटरेस्टेड है इस रीजन में। एंड बिकॉज ऑफ आसियान इज एन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। रीजनलिज्म इज़ क्या, जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है इनके जो भी पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, जो भी इनके इनके रीजन के लिए जो बेनिफिटिंग है, इनके वेलफेयर के लिए कुछ है, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए, इसीलिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारे रीजन, ये पूरा रीजन एक साथ आके
उसके ऊपर डिस्कशन करता है, एनवायरनमेंट भी हो। और जो चाइना है उसका तो उसको बहुत ही पहले से जो साउथ चाइना सी जो है उधर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बट जो इंडिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन फ्यूचर। इट इज़ लाइकली टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस रीजन, बिकॉज इवन आज भी अगर इंडिया कुछ एशियन रीजन में कुछ बोले सो उसको लाइक इम्पोर्टेंस है वो, इसलिए इंडिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट विल प्ले crucial role in further developments in this region.